journey in architecture, about how we propel and pursue it. So Sania, would you like to start with? Sure. I'm Sania Sheikh. I'm from Sem 5. And I would like to give you like a personal background history as to how I landed up in this college. So ever since 8th grade, we had to make a choice, right, as to what career we want to choose in the future. And I always knew that architecture would be my calling because this has like spaces and art and design, the practicality of it, everything, and even my family background. So my father and everybody, they're into the contractor business, so this was very natural to me. And I'm here in Rizvi College now. We've met so many new people, and every year there's like a fresh new face, and it's really fun over here. This is one of my dearest friends, Sarah Sheikh. Maybe she'd like to tell you more about this. Yeah, so as to why I chose architecture, I think I was always very into arts. Like as a kid, like everything just I used to think of making everything into something crafty. And so then as I grew, it was like a bit like anyone who in my family would like just say that she's like the artist of the house. So as I grew, I knew I had to do something artsy, but I didn't want to be like me being artist, like painting every day and everything. So architecture was like that perfect balance of like technicality and like mind work plus the like freedom to like express yourself through art. So that is why I took architecture. And also I feel like the reason why like the motive to continue in architecture just changes like very frequently. And architecture so far for me has been sort of stressful, I think, but also really fun. And yeah, I really like architecture as a whole. सो मेरा नाम हसन है। मैंने बेसिकली आर्किटेक्चर एक एनिमे की वजह से परस्यू किया था। एनिमे का नाम है वन पीस। उसमें एक आर्ट है वानो करके, उसमें पीछे बैकग्राउंड में जापानीज आर्किटेक्चर था, तो मैंने क्या बोलते क्यूरियोसिटी हुई मेरे को, तो मैंने सर्च मारा जापानीज आर्किटेक्चर के बारे में। फिर yeah, that's how I got into architecture. बात करें आर्किटेक्चर की, तो मेरे लिए आर्किटेक्चर बहुत हार्ड था, क्योंकि मेरा एक ट्विन भाई है, तो स्कूल से तो पहले से ही वो मेरे साथ था, पर अभी मेरे को अकेले आना इस वजह था। So the reason I choose architecture is like it's one of the field that gives you the opportunity to turns your vision into reality. Your design concept can be implemented in existence as well. And yeah, that's what I experienced in the first 2 years of the architecture, doing more and more consistent time by time, delivering a relatish amount of work, delivering a fine quality in your work, and working in the group project with these guys is absolute pleasure. I think for me it has been a like ups and downs from the start. पहले ऐसा था कि उसका रीज़न ये था कि इंजीनियरिंग नहीं करना है, मेरा ऐसा था कि कुछ भी करेंगे इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देन आई वेंट ऑन टू सर्च फॉर फील्ड्स अदर देन इंजीनियरिंग दैट वाज काइंड ऑफ आउटकास्ट एंड नॉट वेरी मच पॉपुलर। then I came across architecture and then it went on ahead and ahead. Then it was like सबसे पहले एक्चुअली हम दूसरे कॉलेज में थे, एलिस रहेजा। वहाँ पे अलग टाइप का हार्डशिप हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे आई वॉज लेट ड्यू टू सर्टेन फैमिली रीजंस। तो फिर वहाँ पे इवन देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बाय द टीचर्स। और फिर इवन व्हेन यू आर लेट एट अ प्लेस ना, तो यू आर ऑलरेडी एलियनेटेड फ्रॉम अ ग्रुप, तो वो चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी फील हो रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से एक बहुत एलियनेशन होने के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स आई चेंज माई कॉलेज। then I came into Rizvi. फिर like it was a total different experience from then and here, from crowd, from the faculty to the teaching process. So it has been a lot of like ups and downs as a overall. So it seems like he said, I'm not from this college. Past में I was in Bangli 2 years, so our experience was worse because we had lack of faculty over there and not a good teaching staff. So people over here are
quite welcoming, so it is really good. I'm also from Vamni, and initially I did decide that I'm doing architecture, and my interest little bit in construction and new structure brought me to the architecture, and then I came this college. अगर इस जर्नी के बारे में हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे लोस आते हैं। तो लोस की बात करें तो पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद हमारे जूरी सीज़न, जो मेरी पहली जूरी हुई थी उस समय हमारे प्रोफेसर है साइली गोस्वामी करके, तो वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, बट उस दिन वो फ्रेंडली नहीं थे। मैं वहाँ पर खड़ा रह गया 2 मिनट, मुझे लगा कि अब शायद मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन इसी तरीके से मैं पास हो गया उस जूरी में। लेकिन यही सारे दोस्त हमको सिखाते हैं कि हमें क्या आगे करना चाहिए और कैसे हमको और कैसे इसको डेवलप करना चाहिए, और गलतियों से पहले तो सीखा जाता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। Even I had a very similar experience. We had a mock jury in Sem 2. So my mentor was Minaz ma'am, and I had discussed everything with her from 0 to 100. And then I had my jury, and there I had Uzma ma'am. Uzma ma'am, when she saw me work, she was like, "Your work looks like you have never discussed it with your mentor." I was looking at her face like, "No, this is not the case." So that day I learned that you should not only be with your mentor, you should roam around with other teachers and take opinion from everybody else too. मेरा डिज़ाइन थिंकिंग बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि कुछ तो डिज़ाइन करेंगे पर अच्छा करेंगे, पर टीचर्स का डिज़ाइन नहीं करेंगे। और फिर मेरे को जब फर्स्ट रीडू जब मिला तो मैंने सोचा कि टीचर्स खुद क्यों नहीं बना लेते, आप लोग को डिस्टर्ब क्यों करते हैं, एक खाली वो डायमेंशंस नहीं लिखे, तो फिर उसमें उसके लिए फुल रीडू दे दिया। शीट्स क्या इतना टाइम जल्दी जल्दी कौन बनाता है शीट्स। फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर लेना है तो रिव्यू और रिजेक्शन की आदत डालनी पड़ेगी, और रिजेक्शन को ऐसे मतलब नेगेटिव में और पॉजिटिव में लेना सीखना पड़ेगा। और अगर करना है तो मेरा जैसा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम में मेरे को जस्ट एक डायमेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लिखा था, तो पूरी शीट वीडियो मिल गई थी। तो इसके लिए बहुत केयरफुली शीट बनाना है और काम भी करना है, और प्लस ये लेट नाइट काम भी मिलेगा, बहुत सारे चीज़ होंगी, अप्स एंड डाउन्स तो रहेगी, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। और ट्रिप पे जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से सीखने मिलेगा। और धूप में घूमना है, कैब लेके घूमना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, स्टार्टिंग में बहुत स्लो आ जाता था, बहुत रीडू भी मिले, बाद में शीट इम्प्रूव करके जाए तो ऐसा लगता जैसे कि शीट में बहुत चेंजेस, पहले की शीट जैसे बना था उसमें भी बहुत चेंजेस है जैसे, और एकदम अभी ड्राफ्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है पहले। मेरा भी सेम ऐसे ही था, ड्राफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने भी बहुत मैं भी थोड़ा सा सुधारा है पहले से। So also those people who come like जो दूर से आते हैं या जो बाहर रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आर्किटेक्चर इज अ डिमांडिंग कोर्स लाइक विच डिमांड्स योर टाइम एंड डेडिकेशन। सो उसके अंदर आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, हाउ टू मीट द डेडलाइंस वगैरह, वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं थ्रू आउट द कोर्स। मैंने आर्किटेक्चर इसलिए लिया था इसलिए क्योंकि स्कूल टाइम से मेरा ड्राइंग अच्छा था, और ये फील्ड अच्छा है, आर्ट्स एंड साइंस दोनों बहुत कंबाइंड है, और ये हमें अनेक चीज़ सिखाती है। अब जगह को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें बना सकते हैं। और एक सब्जेक्ट है टॉस, इसमें टेस्ट के टाइम मेरा पार्ट पड़ गया था, और वो फैकल्टी का नाम है रीसा का। और बैठक ये है कि मुझे इसमें केटी लगी है, इसमें जब भी आपको मैथ्स अच्छे से करके आना, प्रिपेयर करके आना, तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना, बाकी एंजॉयमेंट भी बहुत सारी है, हमें हेरिटेज वॉक खत्म हो जाती है।
हेरिटेज वॉक के लिए भी लेके गए, बहुत सारे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करने मिला जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, अभी करने को मिल रहा है। और बहुत सारी ट्रिप्स भी है, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होने वाली हैं आगे 5th ईयर 4th ईयर में। So yeah, I would like to add on that architecture, what people think is just construction, that is the 4 walls, but it is not like that. When we go on trips, we get out of our comfort zones and talk to people, so that is something new, especially for introverted people. Be prepared that you will have to talk a lot to other people. You all just can't be like, I'm an introvert, I want my group people to do, you cannot get through it. अगर अभी आप जा रहे हो फील्ड पे, अगर किसी से बात करना है तो तुमको रिजेक्शन मिलेंगे, लोग सीधा बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मेरे को बात नहीं करना है, या बोलेंगे मेरे को टाइम नहीं है, या कुछ भी बोल के चले जाओ, तुमको उसकी सुनना पड़ेगा। और लेकिन ये सुनने के बाद ऐसा नहीं कि अभी मैं नहीं कहूँगा ये, लेकिन बहुत मज़ा आएगा, आगे लोग अच्छा आंसर भी देते बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग रूड बिहेवियर भी करते हैं, क्यों कौन हो तुम, कहाँ से हो, ऐसे कितना भी कुछ लोगों को बोलो फ़र्क नहीं पड़ता फिर, तो दिल पे मत लेना और काम करते रहना। लाइक ये लोग का सीन तो थोड़ा अलग है कि मतलब ये लोग ने तो चूज़ किया आर्किटेक्चर, बट ये वो मतलब इट्स लाइक 10 o'clock, मैं मेरे अब पापा के साथ मतलब डिस्कशन हो रहा था कि क्या करना है तुझे आगे, तो मेरा ऐसा सीन था कि मतलब मैं ट्यूशन टीचर से अपने पूछा था, मतलब ट्यूशन टीचर को ऐसा बोलते हुए सुना कि हम लोग अपने बड़े भाई को आर्किटेक्चर कराएंगे, तो मेरे को बस एक ही फील्ड का नाम पता था कि आर्किटेक्चर कुछ होता है, मेरे को कुछ भी क्लू नहीं था कि ऐसा कुछ क्या रहता है इसके अंदर, कैसा डिज़ाइन वगैरह आर्ट वगैरह कुछ क्लू नहीं था मेरे को। तो उसके बाद मैं पापा को बोला कि हाँ मेरे को एक पता है आर्किटेक्चर, मेरे को इंटरेस्ट है, मैंने ऐसा बोल दिया। तो फिर मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, तो फिर उन्होंने पूरा मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया, बोले तो अब आर्किटेक्ट ही बनेगा। मैं बोला ठीक है सही है। So as that you have to consider in your work. So in the first year, I experienced something very similar to that because in ARD you have it of since I have a habit of asking doubt again and again and again. In the ARD semester 1, my mentor was Parvesh sir. So yeah, you can tell what happened. आई थिंक आर्किटेक्चर ऑल्सो एड्स टू अ पर्सपेक्टिव। मतलब पहले हम लोग अभी तक जो हम लोग के हर चीज़ में बहुत रेगुलर चीज़ें, बहुत कैजुअल चीज़ें, सब चीज़ नॉर्मली थी, एलीज थे, हम लोग बस उसको देखते थे, वी डिडंट नोटिस इट कि वो कितना सुंदर है, वी डिडंट टेक अ टाइम और पॉज इन आवर लाइफ टू लाइक अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दैट सीनरी। बट नाउ आफ्टर टेकिंग आर्किटेक्चर वी ऑब्जर्व एवरीथिंग मोर एंड मोर लाइक इनटू मोर डेप्थ, फोटोग्राफिंग लाइक डॉक्यूमेंटेड of our daily life and putting it to the picture or our IDs like Instagram IDs is totally handy for the social service like social like platform for it. तो फिर मतलब वो बहुत add on करता है एक value में life में। फर्स्ट जब मैं ज्वाइन की तो विद फुल जोश यार आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग है, वो करते फर्स्ट टाइम विद नो केटीज आई क्लियर माय फर्स्ट ईयर। ओके, जैसे मैं सेकंड में आई लाइक धीरे धीरे करके इतना सारा काम करके मेरी केटी स्टार्ट हो गई। शर्वरी मैम वाज लाइक रूबिया तू ऐसी तो नहीं थी यार, तू फर्स्ट ईयर में इतना सब तेरा काम और तू अभी दिखती ही नहीं है, अगर तेरे से नहीं हो रहा तो तू छोड़ दे। आई वाज लाइक नहीं मैम हो जाएगा करते करते जैसे सेकंड ईयर तो हो गया, लेकिन फिर भी देयर आर स्टिल मैनी केटीज विद मी। थर्ड में तो पहुंच गई, आई एम स्टिल केटीज विद मी। मेहनत तो बहुत है, अभी ट्रैवलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर पोलियो लेके घूमते हैं तो सब लोग ऐसे देखते हैं कि इसमें बम या गन लेके घूमते हैं। हाँ सही में ऐसे डरते रहते सब लोग। और बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं इसमें है क्या, इतना बड़ा बैग क्यों लेके जा रहे हो। आप लगेज में रखो इसे, लगेज में ट्रेन में जब यहाँ ट्रेन में चढ़ते तो फिर वो लोग बोलेंगे यहाँ क्यों आ गए, लगेज लेके घूमना है तो वो है ना बस में जाओ लगेज ले। तो लोग बहुत ऐसा पूछते क्या क्या है और क्या है और क्या है, लिस्ट बताते और लोग को खत्म ही नहीं होगी उनकी लिस्ट। So the college doesn't offer only the academic parts, it also offers some opportunities in the sports as well, football and cricket, like indoor sports as well. At the district level you can go. Yeah. कॉलेज में तो मेरा जब फर्स्ट था तो हमारा 3rd या 4th वीक हम लोग का
PRD वीक दे दिया जिसमें हम लोग को परवेज सर ने भर के और बोला कि 5 बजे तक सबमिट करो। फिर हम ऐसे हो गए थे कि सर घर जाने दो, हमें घर जाने दो। बस Yeah, it is very much of a roller coaster ride. I remember the first day we came here, we were supposed to do a paper ramp walk, fashion show. It was so fun. We enjoyed so much. I was like, भाई मजा आने वाला है. Next day onwards शुरू हो गया रोज रात को जागना ये वो. मेरी मम्मी आके ऐसे सर पकड़ के बैठते थे. What made you choose this? I remember after a few days, same Parvez sir incident. I was crying, sitting here in a corner, and I was texting my mom, I cannot, I'm so tired. And she was like, I must say as a doctor that architecture study is difficult as compared to medical. This is one thing I say yes, but I know it. ऑल्सो ये सबके साथ जब आपका जैसे जैसे आप आगे years में प्रोसीड करते हो, आपका एक वो स्टेशनरी का खर्चा ये वो सब बढ़ने लग जाता है कि आपको मतलब बाकी सब इसके साथ भी अपना स्टेशनरी का पूरा मैनेज करना होता है. आफ्टर यू गेट यूज एंड एवरीथिंग वो और डबल हो जाता है. सो वो एक ये है. So choosing architecture is not just the career decision, it is the commitment for the lifelong passion. So yes, agreeing with you all guys. We all know it is a bit difficult, we can say मतलब थोड़ा tough है जो भी है, लेकिन we are having fun in it, no?